It's today's first problem, so I'll just write down the date. This is 10/11/21. So problem is solve integral equation integration 0 to infinity f of x cos of lambda x into dx is equal to 1 minus lambda 0 less than or equal to lambda less than or equal to 1, and this is 0 for lambda greater than or equal to 1. सो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अंडरस्टैंड. अब मैं बता रही हूँ आपको कि ये टाइप 3 का प्रॉब्लम है, सो इजीली समझ में आ जाएगा. बट इफ इट इज नॉट गिवन कि आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है या फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, देन जस्ट बाय दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वी नीड टू रिकॉग्नाइज इट. हाउ टू रिकॉग्नाइज? First of all, observe your integration, observe your function. The function is given in terms of lambda. Lambda is used for the Fourier transform. Generally, it's not compulsory. I'm saying it once again, it's generally used, not compulsory. And then x is used for the function of x, right? So over here, what we have given, this entire integral representation is equal to function of lambda. So this must be your Fourier transform. So ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा. So what it is exactly? Either Fourier transform, cosine transform or sine transform. That will depend on the integral what we are having. So this is cos of lambda x tells us it is Fourier cosine transform. And if we are having Fourier cosine transform, to solve this integral, we have to find out the inverse Fourier transform by solving this. So to solve given integral, you can start solving along with me. Means to find f of x. So दिया गया इंटीग्रल सॉल्व करना है मीन्स f of x फाइंड आउट करना है. करेक्ट? So f of lambda is given. Now I have to write down the formula for f of x. f of x का फॉर्मूला क्या है f of x फाइंड आउट करने के लिए? This is 2 upon pi integration 0 to infinity f c of lambda cos of lambda x into d lambda. Now why this formula? We'll get back to this part. We have given Fourier cosine transform. This thing we have given. This thing we have given. And इसके corresponding inverse Fourier transform का formula है ये. And that's why we have considered the interval from 0 to infinity. ये भी कहाँ से decide किया हमने? From here, the interval is given from 0 to 1 and 1 to infinity. So यहाँ पर भी हमारी integration की limits आएगी 0 to infinity. Alright, and now what you have to do is just put up this fc of lambda and evaluate this integration. Very simple task. And very carefully, we need to remember that we are integrating with respect to lambda. So lambda is our variable. And x is treated as constant for integration. So every time, until and unless you have this practice, do mention somewhere that lambda is variable or x is variable or u is variable, whatever it is. So it's 2 upon pi integration. Now I can split this 0 to 1 and plus 1 to infinity. For 0 to 1, your fc of lambda is 1 minus lambda into cos of lambda x as it is into d lambda. And for 1 to infinity, your f of lambda is 0, cos of lambda x into d lambda as it is. But as this is definite integration, second integration is going to be 0. So we will not evaluate this. The evaluation is obviously 0. So it's 2 upon pi. Now I have to evaluate this integration. Use integration by parts. 1 minus lambda constant. What is the integration of cos? Sine. This is sine of Sine lambda upon x lambda. minus. Ma'am, final answer, ma'am, plus minus cos lambda x by x square.
राइट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1, -1 इसका इंटीग्रेशन साइन एंड फिर से उसका इंटीग्रेशन माइनस, सो इट Minus. विल रिमेन माइनस cos of Minus lambda cos. x upon x square. Yes, ma'am. So that's our integration varying from 0 to 1. And now substitute upper and lower limit. This is 2 upon pi. Integration. Limit कहाँ पर पुट अप करनी है? लैम्बडा की जगह पर. So it's 1 minus 1. मैं यहाँ पर सारी लिमिट्स पुट अप कर देती हूँ because many of the times I derived the simplification directly. मैं यहाँ पर सारी लिमिट्स पुट अप कर देती हूँ. Now this minus sign, ये minus sign, ये minus sign. Minus sign रहेगा. This is cos of, यहाँ पर भी cos साइन ऑफ लैम्बडा एक्स मैंने पुटअप किया, ये साइन एक्स रहेगा सिर्फ, ठीक है. देन cos ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर. सो हियर वी कंप्लीटेड आवर एप्लीकेशन ऑफ अपर लिमिट माइनस, दिस इज माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट अपॉन इनटू substitute lambda as 0, so it's 1 minus 0 1 into sine of 0 upon x minus 3 minus sign मिला के minus ही रहेगा cos of 0 upon x square. So that completes our application of limits. हाँ संजय मैम वो प्लस हो जाएगा ना मैम cos 0 वाला, क्योंकि वो 3 माइनस है, पर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मैम 0 का ले तो एक और माइनस साइन बाहर आता है ना मैम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. हाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस करने ही वाले हैं ना हम, तो आई लेफ्ट दैट माइनस साइन आउटसाइड ना, ये अब लोअर लिमिट का माइनस साइन है ना. सो नाउ दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 1 minus 1, this is 0, this is entirely 0 because of this term, I'm sorry, because of this term it is 0, because of sin 0 this term is 0, ये term भी 0 है. सो हमारे पास क्या बचेगा, this is minus cos of x upon x square minus cos of 0 that is 1 upon x square. And Ma'am, now plus 1 by x square. plus, yes. And now I could find out that in terms of sin also, because 1 minus cos of x की term हमारे पास है जिसे हम sin में convert कर सकते हैं. So I'll write down first is 1 minus cos of x upon x square. So this is nothing but our function of x we derived, and it is called as the inverse Fourier transform. So ये हो गया हमारा problem, inverse Fourier transform को solve the given integral. Wait a minute. Yes. So ये है हमारा inverse Fourier transform. Now many of the times along with the determination of inverse Fourier transform we may be given certain result to prove, and that deduction we have to solve further. Alright? Is that problem is clear everyone? ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, solve given integral equation ऐसे बोला है हमने. इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करना है मीन्स हमें ये रिकॉग्नाइज किया कि दिया गया फंक्शन f ऑफ लैम्बडा है, मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जिसका यूज करके हम f ऑफ x हमारा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. वी अप्लाइड द फॉर्मूले एंड वी हैव इवैल्यूएटेड, दैट्स इट. अब इस सेम प्रॉब्लम में वेरिएशन कहाँ कहाँ पर आ सकता है. नाउ दिस इज योर f ऑफ x, ये आपका f ऑफ x है. सो इससे इसका यूज करके आपको कुछ डिडक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, राइट. सेकंड थिंग, अगर आपके पास ये फंक्शन दिया है एंड इंस्टेड ये सेम इंटीग्रल इक्वेशन दिया है बट इंस्टेड ऑफ cos ऑफ x आपके पास sin ऑफ लैम्बडा x दिया है, इन दैट केस द एंटायर इंटीग्रल इक्वेशन रिप्रेजेंट fs ऑफ लैम्बडा. एंड अगर ये fs ऑफ लैम्बडा है तो हमारा f ऑफ x मीन्स इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म चेंज हो जाएगा. इंटीग्रेशन यहाँ पर fs ऑफ लैम्बडा आ जाएगा एंड यहाँ पर sin ऑफ लैम्बडा x d लैम्बडा आ जाएगा. So only that variation we are having when just single term in this integral representation changes. So problems are not much difficult, but the problem statement जो है वो tricky लग सकते हैं. So try to understand the problem statement every time. Alright? Okay. Let us now go for the next set of problems. मैं यहाँ पर 2-3 problems मैं साथ में लिख रही हूँ. Find. Question is this one. Find Fourier. All of you solve along with me. Sin oblique
कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। सो क्वेश्चन दिया है फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। गिवन इज f of x इज इक्वल टू, सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा आज का, x फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन a and this is 0 sorry x is greater than a. Or problem f of x is equal to x square 0 less than or equal to x less than or equal to 1 and this is 0 x greater than or equal to, और simply greater than भी लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पर ग्रेटर देन है तो नीचे सिर्फ इक्वल, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ ग्रेटर देन लेते हैं, ठीक है। और एक प्रॉब्लम लिख देते हैं, फोर्थ f of x इज इक्वल टू 1 0 लेस देन x लेस देन 1 और लेस देन और इक्वल टू भी ले लो 0 फॉर x ग्रेटर देन 1. All of these problems to either determine sine integral representation or cosine integral representation were asked in the exam, university exam. ठीक, जब हम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे तब ये प्रॉब्लम्स 4 या 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते थे. ऑलराइट, ओके. सो इन तीनों प्रॉब्लम्स में करना क्या है? क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर. आपको इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है. मीन्स व्हाट? मुझे क्वेश्चन का मीनिंग बताओ. मैम FC लैम्बडा फाइंड करना है. Yes, to find FIR means, कोई भी FIR means to find Fourier transform and to represent f of x in integral form. ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन बोला है तो एफ एस ऑफ लैम्बडा फाइंड आउट करना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है एंड एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है. अगर आपके पास फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है, इन दैट केस एफ सी ऑफ लैम्बडा फाइंड आउट करना है एंड उसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन करना है. दैट्स इट. सो ये मीनिंग याद रखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का. वेरिएशन कहाँ कहाँ पर आ सकता है? यहाँ पर इंस्टेड ऑफ x आपको x स्क्वायर दिया है, 1 दिया है या कोई भी कांस्टेंट दिया है, या इंस्टेड ऑफ x आपको पाई माइनस x दिया है, 1 माइनस x दिया है, पाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिया है, साइन x दिया है, कॉस x दिया है, e रेज़ टू पावर माइनस x दिया है, e रेज़ टू पावर माइनस पाई x दिया है. मैं यहाँ पर वेरिएशन लिख देती हूँ. x की जगह पर क्या क्या आ सकता है? x स्क्वायर वो तो लिखा हमने, x माइनस 2 और 1 माइनस एक्स और पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और e रेज़ टू पावर माइनस एक्स और e रेज़ टू पावर माइनस a टाइम्स x. a कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है. सो इतने सारे वेरिएशंस यहाँ पर x की जगह पर आ सकते हैं. तो 2 वेरिएशन तो मैंने यहाँ पर लिखे, एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर 1. राइट, व्हाट फर्दर वेरिएशन वी हैव? a की वैल्यू में, a की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. सो व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो इंटरवल है ना 0 से लेके इंफिनिटी तक, यहाँ पर कहीं पर भी बीच में आपको एक वैल्यू दी जाएगी, इट्स a. सेकंड प्रॉब्लम के लिए ये वैल्यू 1 है, थर्ड के लिए भी ये 1 है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है. सो आपकी इंटरवल स्प्लिट हो रही है 0 टू a टू इंफिनिटी के लिए. ऑब्वियसली जब आपको स्प्लिट करके इंटरवल दी जाएगी एंड यू विल बी आस्क्ड साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, इन दैट केस a टू इंफिनिटी डेफिनेटली 0 होगा एंड 0 टू a के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होगा. Very rarely it will be asked that 0 to a के लिए फंक्शन x है and a to infinity के लिए some function defined है. Very rarely it will be asked. क्योंकि इसका इवैल्यूएशन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर डिफाइन किया गया फंक्शन अपर लिमिट इंफिनिटी के लिए सिंप्लीफाई हो सकता है. गेटिंग माई पॉइंट? एल्स ये जो सेकंड वाली टर्म होगी ना, ये हमेशा आपको 0 के फॉर्म में दी जाएगी. So our task is quite simple in that case. हमें सिर्फ 0 to a के लिए इस फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन करना है. And variety of functions we will be having in this way. Am I clear, everyone? Other variation क्या है? ये तो एक वेरिएशन बताया मैंने फंक्शन के केस में. Other variation क्या है?
साइन आप यहाँ पर अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कोसाइन के लिए पूछा जाएगा. सो कितने प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर डिस्कस करें? 3 प्रॉब्लम्स मैंने गिवन है. साइन के लिए 3, कोसाइन के लिए हो जाएंगे, तो 6 प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. अगर मेरे पास ये सारे फंक्शंस मैंने कंसीडर किए 1 2 3 4 5 6, सो 6 फॉर साइन, 6 फॉर कोसाइन, ऐसे 12 प्रॉब्लम्स यहाँ पर बन सकते हैं. सो जो प्रॉब्लम्स बनने का तरीका है ना, ये अगर आपको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगी ये भी आप जज कर सकते हो. सो वंस यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ e raised to power -x या e raised to power -ax, इसके लिए अगर आपको सॉल्यूशन का पैटर्न पता है तो आप इजीली किसी भी a वैल्यू के लिए सॉल्यूशन बता सकते हो. e raised to power -x के लिए, e raised to power -2x के लिए, e raised to power -πx के लिए, किसी के लिए भी आप सॉल्यूशन का पैटर्न बता सकते हो. सो टास्क इज वेरी सिंपल. ये है हमारा इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम. समझ में आ गया? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको? किसी को यहाँ पर डाउट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में? नो मैम. ओके, मैं अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बोल रही हूँ. इज इट ऑफ टाइप A1 और 2 और 3, आपको प्लेनली प्रॉब्लम देके रखा है, बट बाय रीडिंग आउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी कैन रिकॉग्नाइज दैट. ओके, यस. सो अब हमें सॉल्व क्या करना है? तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. टेल मी व्हिच प्रॉब्लम शुड आई प्रोसीड फॉर? थर्ड के लिए. ओके, लेट अस गो फॉर थर्ड. ओके, एक्स स्क्वायर के लिए ना? यस मैम. ओके, सो थर्ड के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. यू हैव गिवन f of x is equal to, this is x square for 0 less than or equal to x less than or equal to 1 and x greater than 1 के लिए this is 0. हमें सॉल्व करना है कोसाइन कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर सपोज. सो मुझे पहले FC ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पूछा है. मैं इसका एब्रिविएशन लिखती हूँ. टू फाइंड फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, ये फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हमें FC ऑफ लैम्डा पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 to infinity f of u cos of lambda u du. मैंने जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखा है. एंड नाउ विल स्प्लिट अप दिस इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 to infinity. यहाँ पर ये 0 ही है तो कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर कॉस ऑफ लैम्डा यू इंटू डी. नाउ अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. कौन सा? जनरलाइज्ड. उस केस में हम क्या करते हैं? अलजेब्राइक फंक्शन जो है उसे हम कंसीडर करते हैं u, जिसका डेरिवेटिव हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ दिस u इज फॉर सिंबल, ये हम u स्क्वायर को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं. एंड दिस इज योर v. ठीक है, या मैं इसे u ऑफ x एंड इसे v ऑफ x. तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के लिए v ऐसे चूज करना है जिसका इंटीग्रेशन कंसिस्टेंटली पॉसिबल है, एंड u ऑफ x ऐसे चूज करना है जिसका डेरिवेटिव इजीली 0 बन जाए. सो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. सो लेट मी अप्लाई दिस. u एज इट इज मीन्स u स्क्वायर एज इट इज, v का पहला इंटीग्रेशन साइन ऑफ लैम्डा लैम्डा u डिवाइड बाय लैम्डा. यस, फॉर्मूला में माइनस साइन है. सेकंड u का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ u. ठीक है, देन cos लैम्डा u का सेकंड इंटीग्रेशन. यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, इसका और एक बार इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर. यस. So I always used to tell students to keep these brackets along with sign as it is, क्योंकि अगर आपने इसी स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस कर दिया तो आगे वाला डेरिवेटिव गलत हो सकता है. डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन जो भी हम लिख रहे हैं. So preferably in first step keep the brackets along with the sign as it is. थर्ड स्टेप है प्लस, फॉर्मूला में प्लस है. अब u स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव, ये u स्क्वायर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव है 2. cos ऑफ लैम्डा u का थर्ड इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन एंड थर्ड इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ लैम्डा u अपॉन लैम्डा स्क्वायर क्यूब, एंड दैट कंप्लीट्स आवर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1. वी हैव टू अप्लाई द लिमिट्स नाउ. अब यहाँ पर इंटीग्रेशन क्यों हम खत्म कर रहे हैं? क्योंकि इसका फर्दर डेरिवेटिव हमें अगले टर्म में लेना पड़ेगा जो कि 0 होगा.
सो फोर्थ टर्म ऑनवर्ड्स सारी टर्म्स यहाँ पर जीरो बन रही है. सो वी आर एंडिंग अवर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एट दिस स्टेज. एंड नाउ अप्लाई योर अपर एंड लोअर लिमिट. अपर लिमिट है आपकी 1, लोअर लिमिट है आपकी 0. सो किसे रिप्लेस करना है 1 से एंड 0 से? u को. सो दिस इज 1 का स्क्वायर साइन ऑफ लैम्डा टाइम्स 1 अपॉन लैम्डा. अब यहाँ पर पुट अप कर आप साइन चेंज कर सकते हो. ये माइनस माइनस प्लस है. दिस इज ट्वाइस ऑफ 1 इंटू कॉस ऑफ लैम्डा टाइम्स 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर. यहाँ पर माइनस साइन होगा. दिस इज साइन ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा क्यूब. 2 रहेगा यहाँ पर. लोअर लिमिट का माइनस साइन इंटू अब 0 पुटअप करना है एवरीवेयर. सो इसके साथ क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर 0 हो जाएगा तो फर्स्ट टर्म 0 बन रही है. ये u 0 है तो सेकंड टर्म भी 0 बन रही है. थर्ड टर्म में साइन है इसलिए थर्ड टर्म भी 0 बन रही है. राइट. सो लोअर लिमिट के साथ मुझे तीनों की तीनों टर्म्स यहाँ पर 0 मिल रही है. लेकिन ऐसा हमेशा होगा नहीं, ऐसा नहीं है. नाउ सिंप्लीफाई दिस. दिस इज साइन ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 2 cos of lambda upon lambda square and minus 2 sin of lambda upon lambda cube. And this is our fc of lambda. So what will be your f of x? जो हमें expected है, ये हमारा हाफ प्रॉब्लम हो गया. f of x expected है, so इसका फॉर्मूला है 2 upon pi integration 0 to infinity f c of lambda into cos of lambda x into d lambda. अब यहाँ पर सिर्फ आपको एफ सी ऑफ लैम्डा की वैल्यू पुटअप करनी है एंड दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम. 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी. यहाँ पे साइन ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 2 कॉस ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 साइन ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा क्यूब इंटू कॉस ऑफ लैम्डा एक्स इंटू डी लैम्डा. सो दैट्स अवर फाइनल आंसर विच इज एक्सपेक्टेड. आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो एलसीएम निकाल के. तीनों भी डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसका एलसीएम है लैम्डा क्यूब. सो लैम्डा क्यूब से मल्टीप्लाई करो. सो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर साइन लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कॉस लैम्डा माइनस 2 साइन ऑफ लैम्डा अपॉन लैम्डा क्यूब. आई एम सॉरी. सो इस वे में थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. गॉट इट. मैं सेम प्रॉब्लम के लिए आपको फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व करके बताती हूँ जस्ट फॉर दिस सिंगल प्रॉब्लम. तो यहाँ पर 6 अलग अलग सॉल्यूशन जो फॉर्म हो रहा है वो हम देख रहे हैं. सो दिस इज पार्ट ए फॉर फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन एंड बी पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अब यहाँ पर फॉर फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. सो फॉर्मूला गोज लाइक दिस. एफ एस ऑफ लैम्डा अब हमें फाइंड आउट करना है. इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. जहां पर आपको समझ में नहीं आता है प्लीज आस्क मी. लैम्डा यू डी यू. तो एफ एस ऑफ लैम्डा हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. दिस इज इक्वल टू अप्लाई द फॉर्मूला वंस अगेन. ये है आपका u of x and this is v of x once again. So u of x as it is means u square as it is into sin का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ लैम्डा u अपॉन लैम्डा माइनस ये फॉर्मूला का माइनस साइन है इंटू यू स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ u इंटू साइन का सेकंड इंटीग्रेशन. फर्स्ट इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, सेकंड इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन ऑफ लैम्डा u अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का प्लस 2u का फर्दर डेरिवेटिव इट्स 2 माइनस साइन लैम्डा u का फर्दर इंटीग्रेशन प्लस cos of lambda u upon lambda cube. That completes our integration from 0 to 1. I hope you could understand कि यहाँ पर 0 to 1 plus 1 to infinity ये हमने split करके लिया है and Yes, ये sir. second integration cancel हो रहा है तो हमें evaluate करना है 0 to 1 के लिए. थोड़ा सा मैं short कर रही हूँ. Now substitute upper and lower limit. So upper limit के साथ ये हमें मिलता है 1 का square यहाँ पर minus cos of lambda upon lambda minus 2 into minus minus plus हो जाएगा sin of lambda upon lambda square यहाँ पर 2 cos of
of lambda upon square, यहाँ पर 2 cos of lambda. What happened? Am I audible, everyone? मैम लैग हो गया Sorry, लैग लैग लॅब आहे. हाँ यस मैम अच्छा, लॅग होतोय माझा आवाज. हॅलो. यस मॅम तुमचा थोड्या वेळासाठी दिसत नव्हतं काय म्हणजे दिसत होतं पण फ्रीज झालं Okay, 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 fine. Now it is audible and movable. Screen is movable. यस मैम Visible. Fine. Okay. So twice of cos of lambda upon lambda cube, right? And this is minus 2 times cos of 0 is 1 upon lambda cube. So this is your fs of lambda, but it is not expected. हमें expected क्या है? f of x. तो इसे थोड़ा सा simplify कर सकते हो. This is minus cos of lambda upon lambda plus, या फिर इसे थोड़ा सा आप एलसीएम लेके ही सिंप्लीफाई करते हैं हम. एलसीएम है तीनों की टर्म्स के लिए लैम्डा क्यूब. सो यहाँ पर मुझे मिलता है माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉस ऑफ लैम्डा, यहाँ पर 2 लैम्डा साइन ऑफ लैम्डा, एंड यहाँ पर दिस इज 2 इंटू कॉस ऑफ लैम्डा माइनस 1. द एंटायर टर्म इज डिवाइडेड बाय लैम्डा क्यूब. और एक चीज कर सकते हैं यहाँ पर, ओके मैंने कॉस ऑफ लैम्डा माइनस 1 लिया है, ठीक है. सो ऐसे लिख सकते हैं या थोड़ा सा वेरिएशन भी कर सकते हो आप आपके हिसाब से. इन दोनों टर्म्स में से कॉस ऑफ लैम्डा बाहर लो एंड सिंप्लीफाई करो, वो भी हो सकता है. सो एफ ऑफ एक्स जो एक्सपेक्टेड है फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंट करते हैं हम 2/π 0 to infinity f s of lambda into sin of lambda x into d lambda के फॉर्म में. Am I right? एंड अब यहाँ पर क्या सिंप्लीफाई कर पुटअप करना है, सिर्फ इसकी वैल्यू जो हमने इवैल्यूएट कर ली है. इट्स 2/π इंटीग्रेशन 0 to infinity entirely in bracket minus lambda square cos of lambda plus 2 lambda sin of lambda plus 2 into cos of lambda minus 1 divided by lambda cube into sin of lambda x into d lambda. So that's it for our this problem to find out the Fourier integral sine integral representation, right? तो हमारा इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन जैसे भी पुटअप होता है बेस्ड ऑन द सेम हमें डिडक्शन भी पूछा जा सकता है. सो डिडक्शंस कहाँ पर पूछेंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. इसके लिए डिडक्शन पूछा नहीं जाएगा. डिडक्शन कहाँ पर पूछा जाएगा? FIR फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन या फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन या फोरियर साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन. इसके लिए डिडक्शन पूछा जा सकता है. मीन्स आपको जो इंटीग्रेशन मिला है, जैसे कि यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसका यूज करके और कुछ प्रूव करना है, उसे बोलते हैं हम डिडक्शन. सो आइदर डिडक्शन इस केस में पूछा जाएगा या फिर आपके पास IFT है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म या इनवर्स कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म या इनवर्स साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो इस केस में भी आपको डिडक्शन पूछा जाएगा. राइट. सो वैसे देखा जाए तो हमारे पास 3 टाइप्स के प्रॉब्लम है, 5 टाइप्स के प्रॉब्लम है. 1 ये फाइंड आउट करो एंड उसके साथ ये फाइंड आउट करो. सो ये 2 टाइप, एंड ये फाइंड आउट करो उसके साथ डिडक्शन भी फाइंड आउट करो, ये 2 टाइप. आई होप द प्रॉब्लम पैटर्न इज क्लियर फॉर दिस. तो ये जो मेंशन किए हैं प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करके देखो, आंसर यू कुड गेट वेरी इजीली. जो यहाँ से आगे हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं. ऑलराइट. Yes, one more problem which is asked in exam. So I'll write down the sequentially. This is problem number 5. Okay. Question is establish the following representation. So your question is
representation is e raised to power minus x minus e raised to power minus 2x is equal to 6 upon pi integration 0 to infinity lambda sine of lambda x upon lambda square plus 1 into lambda square plus 4 into d lambda for x greater than 0. This was one Ma'am, star. pi हाँ, pi. pi. I noted na here 6 upon pi. What's the issue? I could not get. संजीत मला नाही कळलं काय इश्यू आहे तो परत एकदा सांगशील. Ma'am, I thought it was 0, so No, it's not 0. It's 6 upon pi. Okay. Now check out. अब तक जो हमने प्रॉब्लम्स देखे थे ना उसमें से ये स्टेटमेंट फिर से अलग है. Establish the following representation means what? Can anybody tell me this? ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना means what? Anyone? फोरियर ट्रांसफॉर्म के रिप्रेजेंटेशन में ऐसा सिंप्लीफाई करना. फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका? किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है? ओके चलो स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? e raised to power minus x minus e raised to power minus 2x. Is it f of x? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. Yes. Now this is 2 upon pi मैं सेपरेट लिख सकती हूँ. ठीक है. इस 3 को 6 into 6 के लिए 3 into 2 लिख सकते हैं. So 2 मैंने यहाँ पर लिखा, 3 हम अंदर लिख सकते हैं. इंटीग्रेशन 0 to infinity 3 lambda upon lambda square plus 1 into lambda square plus 4. इसे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं. into sin of lambda x into d lambda. ठीक है. अब आप बता सकते हो कि ये क्या है? ये f of x का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. फोरियर करेक्ट नहीं, f of x का क्या है? ये इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है. यस मैम. इंटीग्रल. करेक्ट. सो अगर मुझे f of x का इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है तो क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. f of lambda. लैम्डा एफ ऑफ Yes. एक्स एफ ऑफ लैम्डा. Fourier F sine. एग्जैक्टली. वेरी गुड. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. करेक्ट. वेरी गुड. सो हमें फाइंड आउट करना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड वो हमने जज किया इस टर्म के साथ एंड इस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के साथ. सो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा या अदर देन दिस भी कुछ भी स्टेटमेंट आएगा, ट्राई टू रिकॉग्नाइज कि आपको दिया क्या है एग्जैक्टली एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोसीड फॉर योर प्रॉब्लम. तो यहाँ पर भी सेम किया है जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था. फाइंड आउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड सब्स्टिट्यूट इन द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन. दैट्स इट. सिर्फ यहाँ पर फर्क क्या है, हमें दो अलग अलग टर्म्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन देके रखा होगा एंड वी हैव टू अप्लाई दैट इंटीग्रेशन फॉर बोथ ऑफ द टर्म्स. ओके, यू कैन ट्राई आउट दिस प्रॉब्लम अलोंग विद मी. एवरीबडी प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम टाइप इंपॉर्टेंट है जहां पर एडिशन ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल टर्म या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल टर्म्स के साथ आपको इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन या फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा. ठीक है. ओके. सो अनदर क्वेश्चन, जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ डील करेंगे ना, आपको ये स्टेटमेंट दिया जाएगा एंड यू विल बी जस्ट आस्क्ड व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो हम क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म. Yes, ma'am. So problem is just to identify the Fourier transform if this entire thing or integration is given, and it's quite easy कि आपको इस स्ट्रक्चर में सोच के ये टर्म लैम्बडा की आइडेंटिफाई करनी है. So it's nothing but your Fourier transform. वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको इवैल्यूएट नहीं करना होगा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा एंड सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क. एंड अगर पूरा इवैल्यूएट करना है तो ये प्रॉब्लम पूछे जाएंगे 4 to 5 मार्क्स के लिए. Yes, let us start solving it.
सो जैसा आपने बताया है, वी नीड टू फाइंड आउट हियर fs of lambda. To find fs of lambda, use the formula and evaluate it. So this is integration 0 to infinity f of u, f of x क्या है, ये वाली टर्म, into sin of lambda u du. Split this function interval 0 to, अच्छा स्प्लिट नहीं करनी है, सॉरी स्प्लिट फॉर्म में दिया ही नहीं हमें, 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज. फंक्शन है आपका e raised to power minus u minus e raised to power minus 2u into sin of lambda u du. Separate out the integration for both of the terms. So it's integration 0 to infinity e raised to power minus u sin of lambda u minus integration 0 to infinity e raised to power minus 2u sin of lambda u du. So integration हमें दो अलग अलग फॉर्म में निकालना पड़ेगा. Find out that. So this is e raised to power minus u upon minus 1 का square, so it's 1 plus lambda is constant, so इसका square lambda square into minus sin of lambda u minus lambda into cos of lambda u. Check out whether I'm noting the problem formula correctly or not. इसका इंटीग्रेशन है e raised to power minus 2u upon minus 2 का square, so it's 4 plus lambda का square into minus 2 sin of lambda u minus lambda cos of lambda u. I hope I noted the formula correctly. Am I? Yes, ma'am. Yes. Now substitute the upper and lower limit. So जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया था, यहाँ पर अपर लिमिट के साथ मुझे दोनों भी टर्म 0 मिलने वाली है. Substitute infinity, so this is e raised to power minus infinity 0. ये टर्म फाइनाइट रहेगी. क्यों रहती है ये मैंने lagging. Okay, I'm talking slowly. I'll just take out, but net connection is there. मॅम आय थिंक त्यालाच प्रॉब्लेम होता. I don't know. आता येतो व्यवस्थित? येस मॅम, मॅम त्याला प्रॉब्लेम होता वाटतं कारण ओके ओके. ऍक्च्युली आज फ्रिक्वेंटली लाईट्स पण जातात, त्यामुळे कदाचित होऊ शकेल असं. परत डिस्कनेक्ट झाला आय गेस. इज इट ऑडिबल? येस मॅम, लॅग नाही होते, नाही होते. हाँ ठीक है. ओके, सो फॉर infinity as the upper limit, first term is 0 minus this is also 0 and lower limit का minus sign, and now I will put the lower limit. So this is e raised to power 0 1 upon 1 plus lambda square into, for sin of 0 this is 0 minus lambda into cos of 0, that is 1. I'm substituting lower limit to this first term now. That completed. So मैं यहाँ पर और एक कलर के साथ ये ब्रैकेट क्लोज ओपन क्लोज करती हूँ. Then this is minus e raised to power 0 upon 4 plus lambda square into minus 2 sin of 0. So this is 0 minus lambda cos of 0. So it's minus lambda and cos of 0 is 1. So that completes our application of second term with lower limit, and I'll close the bracket. राइट तो अपर लिमिट के साथ दोनों भी टर्म्स 0 है, तो वहां से कुछ नहीं मिल रहा है हमें. लोअर लिमिट के साथ ये दोनों टर्म्स मिली है, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन है, ये माइनस साइन, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1. इस माइनस साइन से अंदर भी मल्टीप्लाई करना होगा, सो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 4. सो माइनस बाहर लेते हैं. This is lambda square plus 4 minus lambda square minus 1 upon lambda square plus 4 into lambda square plus 1. So ये lambda square plus minus 0 बन जाएंगे. 4 minus 1 3. So I'll get 3 lambda upon lambda square plus 4 into lambda square plus 1. Therefore, your f of x, which is e raised to power minus x minus e raised to power minus 2x, can be written as 2 upon pi इंटीग्रेशन 0 to infinity fs of lambda की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करते हैं अपॉन into lambda square plus 4 into sin of lambda x into d lambda. So this is our representation and we established it. हमने ये प्रूव करके दिखाया कि सच में ये आता है, right?
Okay, any doubt, anyone? Sure. मैम फॉर इंटीग्रेशन वी कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला. यस यस, यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो. एक्चुअली मैंने ये इनिशियली एक्सप्लेन किया भी था, सो जिनको समझ में नहीं आया मेरे मैं रिपीट कर रही हूँ. सो आप यहाँ पर डायरेक्टली रेफरेंस देके फॉर्मूला यूज कर सकते हो. सो एवरी टाइम अगर आपको प्री रिक्विजिट्स का डायरेक्टली यूज कर सकते हो तो उसका रेफरेंस दो बस, एंड यू कैन यूज दैट डायरेक्टली. ठीक है. यस मैम. ओके, एनी अदर डाउट एनीवन हियर? Shall I proceed further? Yes ma'am. Okay. Now many of the time now it will depend that what type of solution you can obtain. What is expected through the problem statement, ये आपको recognize करके simplify करना होगा. और एक problem जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, वो हम लेते हैं. We'll try to stop over here. This is fifth or sixth problem जो भी है. Question is solve the following integral equation. Means क्या करना है? Yes, anybody? Inverse Fourier transform. Exactly, inverse Fourier transform find out करना है. So f of x cos of lambda x dx. आप sorry d, yes I'm sorry यहाँ पे x is equal to, this is e raised to power minus lambda comma lambda is equal to 0. Okay, तो दिया क्या है आपको? This entire term is anybody? F of lambda. Of lambda. F of, yeah, fc of FC of FC of yes, lambda. yes. Therefore, to find inverse cosine Fourier transform f of x, तो ये क्या होगा? 2 upon pi integration 0 to yes fc of e lambda. raised to minus lambda cos lambda x dx d lambda. करेक्ट. सो यहाँ पर सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है. सो इट्स ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा कॉस ऑफ लैम्डा एक्स इंटू टी लैम्डा. ओके, सॉल्व दिस क्विकली. जस्ट आगे दो स्टेप का प्रॉब्लम है. मुझे बताओ कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या मिलता है. दिस इज ऑलमोस्ट 5 times asked in the exam just for 4 marks. Problem is quite simple. या यहाँ पर जो आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्म देके रखा है ना, बहुत बार साइन ट्रांसफॉर्म भी देके रखा जाएगा. एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द एफ ऑफ एक्स. सो ऑल ऑफ यू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम, विल क्रॉस चेक इट एंड बाय दैट टाइम आई विल टेक योर अटेंडेंस. एक ही मिनट. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 248%. Okay. 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 265%. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Anybody else is remaining? Okay. Ma'am, 2 by pi 1 by 1 plus lambda square. Yes. 1 by 1 plus x. Yes. x square में 1 by 1 plus x square. X square. Yes. So please fill up the blanks. मैं यहाँ पर final answer लिखती हूँ. It's 2 upon pi 1 upon 1 plus x square. X square. हाँ. Yeah, that's it. So ये हो गया आपका inverse Fourier transform. I hope it's clear to everyone. Any doubt? No.
Okay, so along with this particular PDF, few more questions I will upload on Google Classroom along with the yesterday's and today's video also. So here almost we completed with our unit 2 with much of the practice. Oh, I forget totally. कल का वो प्रॉब्लम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मुझे डालना था एंड उसके वेरिएशंस अगर मैं वो 2/π कांस्टेंट ऐड करती हूँ या स्प्लिट करती हूँ तो हमारा रिलेशन क्या आता है एंड आई गेस संजीत सेंड मी वन फोटो yesterday about that solution. That solution is also correct. I will send you that also what Sanjit sent me. So along with all of this stuff in next lecture also we'll discuss some problems in Fourier transform and inverse Fourier transform and then we'll conclude our unit. So we are about to conclude our both of the units, unit 1 and unit 2. So based on both of these units, we have planned IE, internal evaluation 1. So इसका pattern क्या होगा, exam कैसे होगी, that I will communicate you. But probably on coming Monday or Tuesday, we will be taking that IE according to the schedule which is given in event calendar also. So I'll just cross check it and I'll get back to you on the same. Okay. Fine. So let us stop over here. I guess it's 12:20. Thank you everyone for joining and have a great day. Thank you, ma'am. Yes, thank you everyone.